Global Summit cum Expo on Spirituality for Unity, Peace and Prosperity is a very beautiful theme. It is the need of the hour. How we all can experience unity in diversity. India is a very diverse country with so many languages, so many religions, so many castes and creeds, and yet we say with pride that we live in unity in spite of diversity. But what is more important than all this is peace. Peace is all we want. And where there is peace, definitely there is also prosperity. There is also happiness. There is also love. And there is also power. Without peace, neither can there be happiness, nor love, nor prosperity. And therefore, if we wish to achieve all these things, we do need peace in life. If there is peace, then everything is achieved. So the inaugural session will begin now. And we have with us Brahma Kumar Nirvair ji, the Secretary General of the Brahma Kumaris. We welcome him on the stage. He will welcome all of you. I also invite Raj Yogini Brahma Kumari Shukla Ben, the Director of Brahma Kumaris Harinagar, Delhi, to please come on the stage. I also invite Honorable Shri Kalraj Mishra ji, Governor of Rajasthan, to please come on the stage. We have with us Sister Muni Ben, who is the Program Director in the Brahma Kumaris. And we also invite Dadi Janki ji. She has just arrived. We give her a big hand. Dadi Janki ji, the Chief of Brahma Kumaris, who is over 103 years old, but yet so active, so strong, and willing to meet all of you again. We have with us also Dadi Ratan Mohini ji, the Joint Chief of Brahma Kumaris, who is over 94 years and still going strong, the chairperson of our youth wing. She is also in our midst. The Vice President, Honorable Shri M. Venkaiah Naidu, is expected any minute now. And as he comes, I would request all of you to please stand up and give him an open welcome by clapping hands when he arrives, and then we will all stand for the national anthem. We all stand and give a standing ovation to our Vice President, and the national anthem will be played. Jai
You may please sit down. Global Summit cum Expo on Spirituality for Unity, Peace and Prosperity. And we are so fortunate indeed to have with us His Excellency Shri M. Venkaiah Naidu ji, the Honorable Vice President of India. And it is definitely a great honor for the Brahma Kumaris. Honorable Vice President of India, His Excellency Shri M. Venkaiah Naidu, is very well acquainted with this organization. He has come in our program in Delhi, and with our powerful gesture, as we invited him to come to Abu, he accepted it immediately, and here we have him with us. Please give a big applause. अभी स्वागत होगा हमारे सभी मेहमानों का। पगड़ी, गुलदस्ता, हार के साथ अब हमारे बीच ये कुमारियां आएंगी और एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई से आई हुई बहनों का। अभी मैं निवेदन करूंगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई को, वो स्वागत प्रवचन हम सबके बीच में रखे। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माउंट आबू के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। पिछले 60 से भी अधिक वर्षों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित है। वर्ल्ड वाइड आपने ट्रैवल किया है, बहुत ही अनुभवी वक्ता हैं। आज उद्घाटन सत्र में हम सब इनसे स्वागत के शब्द सुनेंगे। ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अलौकिक संतान, आज के इस विशेष अधिवेशन में आए हुए सभी बहनें और भाइयों को, उनमें भी विशेषकर आज के हमारे अतिथि महोदय श्री वेंकैया नायडू जी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और साथ में आपके हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब श्री कलराज मिश्र जी, और साथ में भारत सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से अर्जुन सिंह जी, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों की तरफ से मैं परम आदरणीय महामहिम श्री वेंकैया नायडू जी का बहुत 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 दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरी शब्दों के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे समय पर जब एक बहुत बड़ा महाधिवेशन यहाँ हो रहा है, जिसमें देश और विदेश के गणमान्य भाई बहनें, आप सभी विभिन्न वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले इस सभा में उपस्थित हैं। ऐसे मौके पर हमारे परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और राजस्थान के गवर्नर साहब इस मौके को चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा सभी जानते हैं, इस अधिवेशन का जो विषय है, आध्यात्मिकता के द्वारा एकता, शांति और संपन्नता, तीन बातें हैं। और ये आएंगी कहाँ से? आध्यात्मिकता से। सभी जानते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय
इसके भारत में 6000 सेवा केंद्र हैं और इसके अलावा 140 देशों में 2000 और सेंटर हैं। सब मिला कर के 8000 सेवा केंद्र हैं, 40,000 समर्पित बहनें, 10,000 समर्पित भाई और मिलियंस के रूप में कहें अनेकानेक परिवार अपने गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले ईश्वरीय मर्यादाओं को पालन करते हुए सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार से बहुत बड़ा ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया है और ऑर्गेनाइज करने के निमित्त मेरे अति प्यारे भ्राता मृत्युंजय भाई और इनकी टीम ने जितनी मेहनत की है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एकता किस आधार से हो सकती है? एक ही बात से, जब ये हम बात समझें कि हम एक पिता परमात्मा के रूहानी संतान आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो ही एकता हो सकती है। और जब एकता होगी, एक दो के प्रति बहुत उच्च भावनाएं होंगी, उच्च भावनाएं होंगी तो शांति भी होगी और फिर इसके साथ में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो फिर अपना कार्य सुचारू रूप से करके समृद्धि को प्राप्त करेंगे। अधिक से अधिक यूं कहें कि धन उपार्जन भी होगा, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि सारे विश्व की आत्माओं को परम पिता परमात्मा का ये संदेश पहुंचाकर ऐसा उनको सतो प्रधान बनाना है कि थोड़े समय के बाद न सिर्फ अपने भारतवर्ष में, सारे विश्व में सत्युगी देवी देवताओं का संसार बन जाएगा। सभी देवताओं के स्वरूप में होंगे। आपस में कितना प्रेम होगा, कितनी शांति होगी, कितना आनंद होगा। तो बहुत 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 मुबारक के साथ आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्वैर भाई जी। अभी मैं निवेदन करूंगी हमारी अति स्नेही, अति प्यारी दादी जानकी जी को। वो भी बहुत उत्सुक है आप सबसे मिलने के लिए और अपने आशीर्वचन आपको देने के लिए। दादी जानकी जी से आप कल तो परिचित हो ही गए। कैसे दादी जानकी जी इस उम्र में भी कितना उमंग उत्साह है इनके अंदर, एक ईश्वर से सच्चा प्रेम है। ओम शांति का मंत्र सदा इनके दिल दिमाग में है, मुख पर है, नैनों के सामने हैं और साथ साथ हम सबको भी योगी जीवन में आने की प्रेरणा देते रहते हैं। दादी जानकी जी हमें कुछ शब्दों में आशीर्वाद देंगे। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति। तीन बार क्यों बोला? आपका कुछ नहीं है। तीन बार ओम शांति। पहला बारी मैं आत्मा हूँ, दूसरा ओम शांति परमात्मा मेरा माता है, पिता है, शिक्षक भी है, सखा भी है,
और क्या, जहाँ भी मैं कदम रखती हूँ वहाँ मेरा साथी स्वयं भगवान है। अभी मैं परमात्मा नहीं कहती हूँ, परमात्मा कहूँ ना तो वो तो शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, वो तो चाहता है जैसा वो है ना, मेरा बाप है या माँ है, मैं देखती हूँ और तो मेरा काम नहीं है, जिधर देखती हूँ वो ही दिखाई पड़ता है। वंडरफुल। भाई साहब क्या देखा? हाँ, ये सभा डायमंड हॉल है, ये एकदम इजी है, सहज राजयोग है। इजी राजयोग, राजाई पाने के लिए ऑटोमेटिक हमारा पाठ है। क्या पाठ है? मैं कौन, मेरा कौन, बोलो। मैं कौन, मेरा कौन। क्या समझे? मैं कौन, पता? हाँ, बोलो। मैं कौन, मेरा कौन। जो मेरा है वो आपका है ना। हाँ, थैंक्स। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? जो मेरा है ना तो आप कर लिया। वारे वाह। सुनो, यहाँ मेरे बोलने में देखेंगे ना, कभी भी वाह वाह नहीं कहेंगे, वाह वाह वाह। समझा? समझा? मेरा 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 नहीं। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या कर रहे हो? दो बातें ज्ञान मार्ग में बाबा ने, हाँ, हम बाबा के सुबह दिया, पता है ना? बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। कितना नशा करो, नशे से भी में नुकसान। ये जो नशा है ना, फायदे हो रहा है। मैं सभा में बोल सकती हूँ, परम धाम, निर्वाण धाम, हम वहाँ रहने वाले हैं। परम धाम में निर्वाण धामानी नहीं है, शांति धाम। सब शांत हो जाओ, देखो वंडर हो रहा है। ओके बोलो, ओके। हम सभी करतल ध्वनि से दादी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितना नशा, कितना निश्चय एक परमात्मा में। हमेशा दादी जी कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कौन और मेरा कौन, ये मंत्र अगर सदा याद रहे तो हम सब सहज ही दुखों से, रोगों से, शोकों से मुक्त हो जाएंगे और इतनी दीर्घ आयु भी हमारी हो सकेगी। तो दादी जानकी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगी दादी रतन मोहिनी जी से, जो जॉइंट चीफ है ब्रह्मा कुमारीज की,
आप भी आदिकाल से, जब से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1936-37 में, आपने 12 साल की छोटी आयु में इस विद्यालय में ज्वाइन किया और इतने देशों में आपने भ्रमण किया है। बहुत ही अनुभवी वक्ता भी हैं, बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं हमारी जैसी बहनों को, कुमारियों को, युवकों को। देश विदेश में आपने बहुत भ्रमण किया है। अब हम उनसे भी आशीर्वचन सुनेंगे, दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति, ओम शांति। बड़ी आवाज से बोलो, ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे पास भारत के मुख्य मेहमान कहें अथवा अपने भाई कहें, जो आज यहाँ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, आप जानते हैं उपराष्ट्रपति और राजस्थान के गवर्नर हमारे पास भारत के मुख्य मेहमान आज पहुँचे हैं, मेहमान के रूप में पहुँचे हैं। परंतु मैं तो ये कहेंगी, भले हम सबका पाठ इस सृष्टि पर अलग अलग है, लेकिन वास्तव में हम जिस परमात्मा पिता की संतान है, उस हिसाब से तो हम सब आपस में भाई और बहन हैं। इसलिए हमें सदा इसी याद में रहना है कि हम परमात्मा पिता के बच्चे, हम सब आपस में भाई और बहन, जो सब मिल कर के अपने भारत देश को कहें इतना ऊंचा बनाएंगे, जो भारत की महिमा आज तक भी गाई जा रही है। ऐसा भारत जो फिर से इस भारत को तो क्या, परंतु सारे विश्व को स्वर्ग भूमि बनाएंगे। ऐसे कार्य के लिए हमारे ये भाई यहाँ भी आज इस भवन के अंदर आए हैं, जहाँ इतना सारा संगठन इकट्ठा हुआ है, जहाँ हम यही शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे, जब हम कहते हैं हम सब आपस में भाई और बहन हैं, तो हम सब का आपस में इतना ही स्नेह, इतना ही प्यार और एक दो को प्रति इतना ही रिगार्ड होना चाहिए। और उसके लिए हमें मुख्य दो बातें याद रहे, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, आपस में सब भाई बहन है। जब हम एक ही परिवार हो गए तो परिवार का आपस में कितना स्नेह होता है, इतना ही हम सब आपस में जब मिलते हैं, एक दो को देखते हैं, तो उसी स्नेह से देखें और स्नेह से मिलते रहें। जब स्नेह से मिलते हैं तो आपस में बड़ी ऊंची बातें करते हैं, जिसके अंदर एक परमात्मा की याद, और उसी याद के साथ हम जब कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए सदा हम बाप को याद करके, बाप अर्थात परम पिता परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, सदा हम उनको याद करते रहें, तो हम सदा एक दो को
भाई और बहन समझेंगे, जिससे भी मिलेंगे उसको बड़ा भाई। अभी हमारे पास जैसे दो भाई, बड़े भाई कहें, जो आज संसार का इतना कार्य संभाल रहे हैं, ऐसे भाइयों को हमारा भी बहुत बहुत याद प्यार है। और ऐसे कार्य को सदा ही हम मिलजुल करके करते रहेंगे तो सदा उसमें विजय पाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी रतन मोहिनी जी। अब हमारे बीच राजस्थान के राज्यपाल ऑनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी के द्वारा हम सुनेंगे। ऑनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी, आप गवर्नर ऑफ राजस्थान हैं। आप पहले गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी रह चुके हैं और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आप बीजेपी में आप गवर्नमेंट में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत ही सक्रिय मेंबर भी रहे हैं। हमारे बीच आज पहुँचे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राजस्थान के राज्यपाल हमारे बीच हैं, खास इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगी, हमारे ऑनरेबल कलराज मिश्रा जी कृपया मंच पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति और समृद्ध विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ आए हुए बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम एम वेंकैया नायडू जी, मंच पर विराजित राज योगी बीके निर्वाल जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी रतन मोहिनी जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर विराजित राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम विश्नोई जी, मंचस्थ श्री राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, मंचस्थ सभी सम्मानित बंधुगण, यहाँ आए हुए विश्व के कई देशों के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सम्मानीय बहनें और सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आध्यात्मिकता से एकता, वैश्विक एकता, यह विषय स्वयं में महत्वपूर्ण है, गंभीर है और व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति आत्मचिंतन करते हुए अपने मन के सात्विक वृत्ति को जागृत करते हुए पाप पुण्य का स्वयं विश्लेषण कर, ये पाप है, ये पुण्य है, स्वयं विश्लेषण करते हुए क्या करना, क्या नहीं करना। जब चलता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर अनुशासन की भावना जागृत होती है और वही अनुशासन की भावना एकता के अंदर पूरे विश्व को गूंथने में सक्षम और समर्थ होती है। आज का वैश्विक सम्मेलन इसी दिशा में किया जा रहा है सम्मेलन है। आबू रोड के
शांतिमय परिसर में प्रवेश करते ही लगता है कि ये बड़ा सुखद और शांत तथा पवित्र अपनेपन की भावना को जागृत करता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन की जो भीड़ भाड़ है, जो उहापोह की स्थिति बनी रहती है, कई विषयों को लेकर जो कुंठा होती है, उन सारी चीजों से यहाँ प्रवेश करने के पश्चात ही लगता है कि यहाँ के अभ्यास के कारण वो सारी चीजें स्वयमेव समाप्त हो रही हैं। मुझे इस संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित कराया गया। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर पूर्णतया नारी शक्ति के संचालित यह संस्था प्रारंभिक विरोध के बावजूद एक वैश्विक संगठन बनकर आगे बढ़ी है और लोगों को दिशा प्रदान कर रही है। इस समय विश्व के लगभग 140 देशों में लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित कर रही है। समस्त विश्व के लिए यह भी एक अनूठी बात होगी कि संस्था के संचालिका दादी जानकी जी 104 वर्ष की आयु में भी एक कुशल प्रशासक ही नहीं, अपितु स्नेह, प्यार तथा सहयोग की ये प्रतिमूर्ति है। मैं प्रणाम करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की 83 से भी अधिक वर्षों की निर्विवाद तथा निर्विघ्न यात्रा इसके आध्यात्मिक आदर्शों की दृढ़ता तथा सत्यता को प्रमाणित करती है। संभवतः नारी द्वारा संचालित यह आध्यात्मिक संस्था विश्व का पहला संगठन है जिसने नारी का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करके उन्हें न केवल एक नई पहचान दी है, अपितु उनके अंदर देवत्व के भावों को भी साकार किया है। इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ने पर्यावरण तथा प्रकृति के तत्वों से सात्विक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। लगातार उसको संतुलित करने के लिए प्रयासरत है और सकारात्मक सहयोग के आधार पर यह इनका एक अभिनव प्रयोग है। यह सर्वविदित है कि आज पृथ्वी पर मानव जीवन अपने अस्तित्व के सबसे गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, वायुमंडल में दूषित तथा हानिकारक तत्वों का होना, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, मौसम के अप्रत्याशित परिवर्तन इत्यादि सब मिलकर पृथ्वी पर केवल मानवीय ही नहीं अभी हर प्रकार के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना है। ऐसे समय में प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वे इस क्षेत्र में अपना क्रियात्मक योगदान करें। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व पुरुषों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने केवल भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बंधुत्व के श्रेणी में लिया, वसुधा को कुटुंब के रूप में लिया। इसमें गिर कंदराएं ही, प्रकृति भी है, नर नारी, कीटाणु सब आ जाते हैं। ये पर्यावरण को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मुझे कहा गया है कि हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम द्वारा समस्त देश में लाखों वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण करके समाज के सामने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। यह जानकर अति हर्ष होता है। यह संस्था स्वच्छता तथा पर्यावरण की शुद्धता को केवल अपने आसपास के बाहरी वातावरण तक ही सीमित नहीं रखती है, अपितु मनुष्य को मानसिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली तथा राजयोग मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक चिंतन की शिक्षा तथा प्रेरणा भी देती है। एक और जहां अपने घर, गली, मोहल्ले इत्यादि को साफ रखने का अभियान चलाया जाता है तथा किसानों को वृक्षारोपण तथा यौगिक खेती, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता का प्रोत्साहन दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को सात्विक भोजन के साथ
विचारों को भी सात्विक बनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, नाम उल्लेख किया के बगैर इसलिए नहीं रहा जाता है कि इन्होंने इन सारे मूल भावों को संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण के अंदर इस तरीके से प्रस्तुत किया है, मानो लगता है कि आध्यात्मिकता से पूरी वैश्विक एकता को संचालित करने में वो सक्षम है, दिशा निर्देश करने में सक्षम है, ऐसा लगता है। उन्होंने स्वयं ये मंत्र दिया है, स्वच्छता ही सेवा है, और लगातार अपने जीवन में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिले, विश्व को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह समस्त विश्व एक गहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां वातावरण तथा पर्यावरण की असंतुलित स्थिति व्याप्त है, तो दूसरी ओर विज्ञान तथा अध्यात्म परस्पर विरोधी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ओर जहां विज्ञान ने मनुष्य को धन तथा साधनों से संपन्न कर दिया है, तो दूसरी ओर व्यक्ति शांति तथा खुशी के लिए तरसने लगा है। उसके पास धन की कमी नहीं है, परंतु सारा धन व आराम के साधन उसके लिए एक पल की शांति भी प्राप्त नहीं करवा सकते। अगर कहा जाए यह समय मटेरियल प्लेंटी एंड स्पिरिचुअल स्कैरसिटी का है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय प्रत्येक भारतीय को अपने जाति, क्षेत्रीय, लिंग तथा धर्म के भेदभाव भुलाकर मानवीय चेतना को जागृत करते हुए मानव हित में सोचना तथा कार्य करना चाहिए। विज्ञान तथा अध्यात्म को मिलकर संतुलित रूप से मानव हित में सकारात्मक तथा सृजनात्मक योजनाबद्ध कार्य करना है। किसी भी प्रकार का मतभेद, विरोध या नकारात्मकता सोच देश और समाज के हित में नहीं होगी। एक तरफ जबकि विज्ञान की प्रगति मानव जीवन को सरल तथा सुगम बनाने के लिए आवश्यक है, दूसरी ओर मनुष्य को अपने अंतर्मन को शांत, सुखी तथा पवित्र बनाने के लिए जीवन में मूल्यों तथा गुणों का विकास करना होगा। इन दोनों तथ्यों का सामंजस्य तथा विकास अति आवश्यक है। इस संस्था के द्वारा निरंतर किया जा रहा है, और आज ऐसे गतिशील व्यक्तित्व के द्वारा इस विषय का उद्घाटन किया जा रहा है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिन्होंने इन सारे गुणों को, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करते हुए पर उपदेश देकर नहीं, तो अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से लोगों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्व चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, इस गुण को अगर कोई आचरण और व्यवहार में कर रहा है, तो आज के यहाँ जो आए हुए उद्घाटन करता गतिशील व्यक्तित्व के धनी भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजस्थान में जब मैं राज्यपाल हुआ है, तो मेरे राज्यपाल होने पे पहली बार आप यहाँ पधारे हैं, और एक अच्छे स्थान पर पधारे हैं, जहां से सात्विकता और पॉजिटिविटी अपने आप पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने में गतिशील होगी। ऐसे वेंकैया नायडू जी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबों से आग्रह करता हूं, ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय जी। आपने राजस्थान में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पाकर कितना आप धन्य महसूस करते हैं, हम भी धन्य महसूस करते हैं आपको राजस्थान का राज्यपाल पाकर। तो ज़रूर हम इनका और ज़ोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे। अब उद्घाटन विधि आरंभ होगी, और आज इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन अभी होगा, और उसके बाद हम महामहिम उपराष्ट्रपति के द्वारा उनका उद्घाटन संबोधन सुनेंगे। I request all the honorable speakers on the dais to please come forward for lightening the lamps.
हम सभी भी अपनी अपनी खुशी प्रकट करेंगे करतल ध्वनि के द्वारा। ये दीप परमात्मा की निशानी है, हम सभी आत्माओं की निशानी है। हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप है और उसी का यादगार ये दीप प्रज्वलन है। दीप से दीप जलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दादी जी ने भ्राता जी को बहुत सुंदर गोल्डन शिव बाबा का बैज पहनाया है। हम सभी करतल ध्वनि से इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप भी कैसे बाबा के बच्चे बन कर के यह राजयोग मेडिटेशन आप सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं। अब हम प्रेसिडेंशियल स्पीच सुनेंगे। ऑनरेबल श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा उद्घाटन प्रवचन हम सुनेंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी से उद्घाटन भाषण सुनेंगे। राजस्थान प्रदेश का राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, राजस्थान सरकार से मंत्री श्री सुखराम वैष्णव जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी, ब्रह्म कुमारी प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी, ब्रह्म कुमारी संयुक्त प्रमुख राजयोगी श्री बीके निर्वैर जी, महासचिव ब्रह्म कुमारी, राजयोगी श्री बीके मृत्युंजय जी, कार्यकारी सचिव ब्रह्म कुमारी, राजयोगिनी बीके मुनि, सदस्य ब्रह्म कुमारी प्रबंधन निकाय एवं देश विदेश से पूरा भारत से पधारे हुए प्रतिनिधि बंधु और मीडिया बंधु तथा अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, सबको मैं मेरा विनम्र नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस महान आध्यात्मिक संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर आप सबसे अपने विचार साझू करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति एवं समृद्धि यह विषय आज के विश्व के लिए अपार संभावनाएं संजोए है। इस विषय पर विश्व आपके विचार जानने को इच्छुक है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों आध्यात्मिक और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। मित्रों और भाइयों और बहनों, नई आशाओं का नया भारत आकार ले रहा है। नए युवा नई चुनौतियों को नए अवसरों में बदलने के लिए क्षमता रखते हैं। नई तकनीकों के साथ
हम अपने पुराना संस्कारों को और आध्यात्मिक आधार को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता की प्राचीन परंपरा रही है। गीता स्वयं ईश्वरीय उपदेश है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के शिक्षाएं हमारे षड दर्शन से लेकर शंकराचार्य जी, कबीर जी, रविदास जी, नरसिंह मेहता जी, गुरु नानक जी, सूफी संत तथा आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद जैसा गुरुओं ने समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। उसी महान परंपरा को आज आप जैसी संस्थाएं और समृद्ध कर रही है। योगा और आध्यात्मिक दर्शन हमारा सामाजिक संस्कार, भारत की सॉफ्ट पावर है। आप जैसे संस्थाएं विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करा रहे हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर हृदय से ब्रह्म कुमारी समाज का ये उद्यम को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। न्यू इंडिया इज टेकिंग शेप with the aspirations and energy of our youth and young entrepreneurs. They have the capability to convert challenge into opportunities. As we adapt to fast changing technologies, we must not forget our spiritual moorings, including our rich heritage of yoga, spiritualism, tolerance, and peaceful coexistence. They are foundations of our civilization. I am glad that institutions like yours have taken this Indian message of universal peace and welfare to the remote corners of the world. अपने लंबे इतिहास में भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक रहा है। हमारा विश्वास, हमारा निष्ठा वसुदैव कुटुंबम के आदर में रहे हैं। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण किया नहीं। यह देश सम्राट अशोक का जन कल्याण के लिए धम्मा यात्रा के देश विदेश में शांति और धर्म प्रचार के माध्यम से धम्म विजय की हमारे शांति मंत्रों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की प्रार्थना की गई है। शेयर एंड केयर अर्थात माधव सेवा से पहले मानव सेवा, यही हमारा संस्कार रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंडिया बीइंग ए ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, India was once upon a time known as Vishwa Guru. Indian GDP was 25% of the world, but India never attacked any country because we believe in peaceful coexistence. We believe in the philosophy of Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudhaika Kutumbakam. The entire world is one family. We are all brothers and sisters. That is the foundation of our philosophy. We have always upheld the idea of Vasudhaiva Kutumbam. This is the country of Emperor Ashoka, who took out Dhamma Yatra for the welfare of his people. This is the land which believed that Yato Dharma, Tato Jaya, whoever follows the path of Dharma, a virtuous path becomes victorious. In our Santi mantras, we pray for welfare of all. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. मुझे यह जानकर हर्ष है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी संस्था की 133 वर्षीय मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आपकी संस्था सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, पोषण अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त जैसा रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग करे। आपके सहयोग से यह कार्यक्रम एक जन अभियान का रूप लेगा, जिसमें जन साधारण स्वतः ही सक्रिय सहयोग करेंगे। सरकार और आपके साधु प्रयास से ही नई सकारात्मक जन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। मैं आपके सहयोग का आग्रह करता हूं। आई एम श्योर दैट योर सपोर्ट मेनी गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स like Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat, water conservation, Poshan Abhiyan, removal of single-use plastic, there will be a greater social action and a significant social change in people's mindset and behavior. मित्रों, आज सारा विश्व अपना ज्ञान कौशल, वैज्ञानिक तकनीक प्रबंध के बल पर भौतिक सभ्यता की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है।
अखिल विश्व तकनीक के बल पर एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। विभिन्न संस्कृति, धर्म, सभ्यताओं के बीच संवाद संभव हुआ है। एक दूसरे से संवाद करने का बेहतर अवसर और विकल्प उपलब्ध हो रही है। परंतु इन उपलब्धियों के बाद भी क्या मानव सभ्यता सही दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? जिस आदर्श वैश्विक गांव का सपना हमने देखते हैं, वही शांति, आध्यात्मिक, आत्मिक एकता होनी आवश्यक है। सूचना क्रांति हमें संपर्क के माध्यम तो उपलब्ध करा सकती है, मगर सभ्यता, साझू अनुभव, मूल्य, आदर्श और मुद्दों से ही होती है, सिर्फ तकनीक से नहीं। What we envisage as Vasudhaiva Kutumbakam, the global village, is a global community where, notwithstanding diversity of cultures, language and beliefs, the inherent spiritual unity and harmony prevails. Information technology can only facilitate contact and communication, but a civilization is built on the basis of shared experiences, values, ideals and aspirations by preserving the best in our cultural heritage. Unity, spirituality, peace will create the conducive milieu for overall lasting prosperity. Unity, spirituality, peace will create the conducive milieu for the overall lasting prosperity. इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जब धर्म के नाम पर हिंसा और आतंक का तांडव नृत्य होने लगता है, तो हमारा मन में मनुष्य के ज्ञान और विवेक को लेकर संदेह होना लगता है। जब मनुष्य में स्वार्थ, अहंकार, भेदभाव इत्यादि संकीर्ण भावनाएं उसके विवेक पर नियंत्रण कर लेती है, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, सद्भाव, प्रेम, सहयोग, सह अस्तित्व जैसे मानवीय मूल्यों का अवसान होने लगता है। इससे मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, समाज तथा वैश्विक सभ्यता में विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति से उबरने के लिए आपका योगदान जरूरी है। कारण क्या है? लोग ब्रह्म कुमारी समाज का ये उद्यम को बहुत आदर करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन के लिए उद्यम के ओर देखते हैं, और जो मार्गदर्शन मिलती है उसी को नीचे लेने जाने तक प्रयास करते हैं। अपना जीवन में आचरण करने में भी वो लोग प्रयास करेंगे। इसलिए आपका योगदान इस विषय में बहुत जरूरी है। हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वरीय विश्वविद्यालय भारत सहित पूरे विश्व में लगभग 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्रों के माध्यम से अखिल मानवता को प्राचीन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई संगठन दुनिया में और कोई नजदीक में नहीं दिखते। मानवता को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी आवश्यकता है, जो विज्ञान को कल्याणकारी राह दिखा सके। आज जब विश्व में धार्मिक, जातीय विद्वेष और आतंकवाद का विष फैल रहा है, तब आशंका है कि विज्ञान प्रगति का दुरुपयोग आतंकवादी गिरोह न करे। यह विडंबना है कि संपर्क क्रांति के इस युग में भी आज समुदायों का पहचान धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। धर्म की स्थापना तो जन कल्याण के लिए हुई थी, ना कि समाज में विघटन और हिंसा के लिए। जो धर्म के नाम पर हिंसा, आतंकवाद फैला रहा है, वे वस्तुतः धर्म के विरोधी है। हमको धर्म के आध्यात्मिक आधार को समझाना होगा, और आध्यात्मिकता ही धर्म का मूल उद्देश्य है। हर धर्म का आध्यात्मिक आधार लगभग एक ही है। हमने धर्मों के इतिहास, उनके भौगोलिक प्रसार का अध्ययन ही किया है। उनकी निहित आध्यात्मिक एकता, उनकी दार्शनिक गहराई का नहीं, धर्म की सार्थकता उसके भौगोलिक प्रसार में नहीं, बल्कि मानवता को आध्यात्मिक शांति और स्थिरता देने में है। स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिस फॉर ऑल रिलीजियंस। There is an inherent unity among all the religions. The same spiritual thread binds them together. We must collectively recognize this truth and propagate it. That is what your organization is actively doing, and I am happy that you have been doing it for over many decades. मित्रों, सिर्फ मानव को ही यह विवेक प्राप्त है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व, उसके उद्देश्य का विश्लेषण कर सके। जो स्वयं अपने से प्रश्न कर सके,
और उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। यह प्रयास ही हमें आध्यात्मिक गहराई प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा स्वयं को खोजना ही आध्यात्मिक है। उपनिषदों में पंच महाकाव्यों का उल्लेख है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्म है, सर्वम कर्विदम ब्रह्मा, सर्वत्र ब्रह्म है। ये सभी हमारी मूलभूत आध्यात्मिक एकता की ओर संकेत करती है। आध्यात्मिक उत्कर्ष दूसरे मतों विश्वासों का नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि स्वयं अपने अहंकार को पराजित करके प्राप्त होता है। किसी आध्यात्मिक आदर्श के बिना हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति भी मानव समाज को सुरक्षा स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती। अतः जरूरी है कि हम अपनी तकनीक प्रगति तथा आध्यात्मिक चिंतन को पूरक बनाए। आध्यात्मिक आधार के बिना मात्र भौतिक समृद्धि से संस्कारों और जीवन मूल्यों में विसंगतियां आएंगे। व्यक्तिगत जीवन और समाज में असंतुलन बढ़ेगा। जीवन का सरल, स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए आध्यात्मिक आधार बहुत आवश्यक है। मित्रों, यह माना गया है कि कोई संघर्ष सबसे पहले मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। अतः संघर्ष के विरुद्ध सुरक्षा भी मानव मस्तिष्क उसके संस्कारों को उसकी शिक्षा में ही तैयार करने होगी। आध्यात्मिक ज्ञान ही विश्व में सच्ची शांति, एकता, समरसता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। If the conflict emerges from the minds of the men, then the defenses of peace too should be built on the thoughts, ideologies and attitudes of the people through education and shaping of their value systems. Value-based education can ensure lasting peace, stability in the society and create a just, equitable and social order. मुझे हर्ष है कि आपकी संस्था ने विश्व शांति के लिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए, कल्चर ऑफ पीस सहित वैश्विक स्तर पर अनेक अभियानों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, जिसके लिए हमारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वर्ष 2002 में संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपकी आध्यात्मिक संस्थाओं को 7 अंतरराष्ट्रीय शांति दूता पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अंत में इस महासम्मेलन में भारत, नेपाल तथा विश्व के अनेक देशों से पधारे हुए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस सम्मेलन से शांति, एकता और समृद्धि के लिए एक आध्यात्मिक संदेश लेकर जाएंगे तथा देश और समाज को सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य देंगे। मित्रों, पीपल विल नॉट बी हैप्पी, satisfied with a simple prosperity. Mere amassing wealth will not give you the peace. What is required for mental equilibrium is spirituality. India is the spiritual capital of the world for giving peace. और स्पिरिचुअलिटी के कारण से, आध्यात्मिकता के कारण से मन में शांति होता है, विवेचन होता है, सन्मार्ग मिलता है, सद्विवेचना, सत्प्रवर्तन का मार्ग दिखाता है, सद्बुद्धि प्राप्त होता है। इसलिए आध्यात्मिकता देश के लिए, मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और इस दिशा में जो ब्रह्म कुमारी उद्यम जो अच्छा काम कर रहे, उसका मैं और एक बार सराहना करता हूं और भी व्यापक बने, समाज में सभी वर्ग तक ये उद्यम पहुंचे, ये मेरा आशा है। मित्रों, दुनिया के लिए आज क्या चाहिए? दुनिया के लिए अमन, दुनिया के लिए तरक्की चाहिए। पीस एंड प्रोग्रेस, दे गो टुगेदर। पीस इज प्री रिक्विजिट फॉर प्रोग्रेस। इफ यू हैव टेंशन, यू कैनॉट हैव अटेंशन। इफ यू हैव टेंशन, यू कैनॉट हैव अटेंशन। दैट्स व्हाई टेररिज्म इज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। आतंकवाद मानव का दुश्मन है।
ये याद रखना चाहिए। और आतंक को समाप्त करने के लिए पूरा दुनिया एक साथ एक मंच पर आके आगे बढ़ना चाहिए। जो आतंक को फैला रहे ऐसा लोगों को आइसोलेट करने के लिए, उनको कॉर्नर करने के लिए, उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए जो जो मार्ग निकालना चाहिए वो सब मार्ग पूरा दुनिया मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज यू आर ऑल सीइंग टेंशन इज स्प्रेडिंग, violence is spreading, and terror creates unrest, terror affects development, terror affects peace in the mind and also in the body. Keeping that in mind, the time has come that all of us should join together to pay attention to this threat of the world, that is terror. We all heard, कल हम सब लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 भाषण सुना। एक भाषण अमन, तरक्की, शांति, समृद्धि के बारे में बोलने वाले भाषण हम लोगों ने सुना है, और दूसरी तरफ हम लोगों ने एक सुना है, वन साइड इज एडवोकेटिंग पीस, प्रोग्रेस एंड वेलफेयर, ऑन द अदर साइड इज प्रीचिंग हेट्रेड, द्वेष, वायलेंस, हिंसा और ब्लडशेड, रक्तपात। ये दुनिया के सामने ये चॉइस है, क्या हमको शांति चाहिए, अमन चाहिए, तरक्की चाहिए, संक्षेम चाहिए, शांति चाहिए या रक्तपात चाहिए। ये सब लोग मिलकर ये रक्तपात फैलाने वाले, बढ़ाने वाले ऐसा लोगों को कॉर्नर करने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए सब लोग प्रयास करना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के भी इस विषय में अपना जिम्मेदारी को, दायित्व को निभाना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसी देशों को, ऐसे समाज को, जैसा मैंने कहा, आइसोलेट करने के लिए प्रयास होना चाहिए, तभी दुनिया में शांति संभव हो जाएगा। और साथ ही साथ और एक विषय बता के मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा। मित्रों, हम सब लोग प्रकृति के साथ प्यार और दोस्ती होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नया पीढ़ी को भी, लव एंड लिव विद द नेचर, लव एंड लिव विद द नेचर, नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, नेचर एंड कल्चर जॉइन टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, love and live with the nature. I am very happy Brahma Kumaris are propagating this philosophy of loving and living with the nature, and I would like to once again thank the organizers for inviting me to this program. The Brahma Kumaris Samajis have been meeting me at different places. I have attended your yoga program in Delhi. It was very impressive, and I have attended some other programs also, but the movement organizers have been asking me to come to your Kendra headquarters, but somehow I could not make it. But there was a desire in my mind, I should attend this conference, and I should attend this conference during the lifetime of Rajayogini Dadi Janaki ji. इस उम्र में भी इतना स्पष्टता और वो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को आध्यात्मिक भावना से जुड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे, वो प्रयास का मैं सराहना करना चाहता हूँ। केवल राजयोगिनी दादी जानकी जी नहीं है, राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी भी इस उम्र में वो लोग अपना पूरा शक्ति और सामर्थ्य, आध्यात्मिकता को पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रयास कर रहे, उनको मैं, दोनों को मैं विनम्र वंदन करता हूँ और मेरा वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत प्रेरणास्पद शब्द हमने सुने हमारे माननीय श्री वेंकैया नायडू जी से, और हमें उम्मीद है कि ये सब अपने जीवन में हम लाएंगे। अब हम दादियों से निवेदन करते हैं कि हमारे मेहमानों का सम्मान करें मेमेंटो और एक सुंदर गिफ्ट के साथ। श्री वेंकैया नायडू जी का सम्मान हो रहा है, बहुत सुंदर ये मेमेंटो है, और गवर्नर साहब को भी
माननीय श्री कलराज मिश्रा जी को भी मेमेंटो भेंट कर रहे हैं। अभी इसके बाद मैं निवेदन करूंगी भ्राता मृत्युंजय जी से, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी बहुत वर्षों से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप बेंगलोर से हैं और यहाँ माउंट आबू में जब से हमारी कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई 83 से, तब से आप इनकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं। तो राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी वोट ऑफ थैंक्स देंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन आप सभी बैठे रहेंगे क्योंकि शीघ्र ही फिर दूसरा कार्यक्रम भी शुरू होगा। आप सब यहीं बैठे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। ऐसी दिवस पर भारत की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केवल वेंकैया नायडू तो राष्ट्रपति नहीं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तिरुपति वेंकटेश्वर इधर आकर के हम सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। हमारे भारत की भविष्य के एक दिशा निर्देशन दिया है। इसके लिए मैं आप सबको ब्रह्म कुमारी पूर्व विश्व की संगठन के माध्यम द्वारा आपको बहुत बहुत मल्टी मिलियन थैंक्स। आप सभी खड़े होकर के 1 मिनट के लिए धन्यवाद दें, सभी अभिवादन करें। थैंक यू। और बैठी ऐसी ऐतिहासिक दिवस पर हमारा राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्रा जी ये सेकेंड टाइम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल राज्यपाल के रूप में नहीं है, विश्वनाथ जो हमारा विश्वनाथ के रूप में आकर के हम विश्व का दर्शन करा के सेवा करने के लिए प्रेरणा दिया। इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। साथ साथ में हमारा आदरणीय मेहमान अर्जुन राम मेघवाल जी, हम कई बार आप मिलते रहे दिल्ली में। जब भी मैं कोई भी कार्यक्रम को निमंत्रण देता हूँ उन्होंने तत्काल स्वीकार करते हैं। आज भी हमारा सम्मुख में है। आपको भी मैं समस्त परिवार की तरफ से, दादी की तरफ से बहुत धन्यवाद, बधाई। और हमारे सुखराम बिश्नोई साहब, आपको हमारा राज्य के मंत्री जी है, हम आपके माध्यम द्वारा निर्देशन लेकर के राजस्थान को विश्व का गुरु बनाएं, भारत बाद में बनेंगे और इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजस्थान में मुख्यालय है। ऐसी मेहमान को भी मैं बहुत धन्यवाद और अन्य सभी मेहमानों को मैं बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मेरे को याद आ रहा है, परम आदरणीय दादी जी कुछ वर्ष पूर्व महामहिम की बेटी के घर में वैजाग में 1 दिन रात में व्यतीत किया था। आज महामहिम 1 घंटे के लिए हमारा बीच में आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई। और मुझे याद है महामहिम पूर्व में जब भारत सरकार का मंत्री जी थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना प्रस्तुत आपने किया था, उस समय में मैं भी देखा था। मुझे एक अनुरोध है, माउंट आबू को एक तीर्थ स्थल बनाने के लिए आबू रोड की एयरपोर्ट है, उसका वाइडनिंग एंड लेंथनिंग करने का आप पुरुषार्थ करके हम एक प्रयत्न करेंगे कि माउंट आबू एक विश्व गुरु, विश्व तीर्थ स्थल बनेंगे। ऐसे कार्य में आपके सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद और सबको भी धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई जी। सभी अभी नेशनल एंथम होगा, हम सब खड़े होंगे और उसके बाद हमारे मेहमान यहाँ मंच के नीचे आएंगे और आप सबसे मिलेंगे।
अभी सभी बैठ जाएंगे और उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यपाल जी यहाँ से नीचे आएंगे। सभी बैठ जाइए, कृपया सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। बहुत खुशी हुई, उन्होंने स्वीकार किया। देखिए आपके पास आ रहे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सब सुखी सबका भला
ये शुभ संकल्प है। सब सुखे सबका भला, ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का, करना काया कल्प है। बेसहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं।